कि नॉइज ज्यादा है क्या? This call is now being recorded. जस्ट अ मिनट। अभी आ रहा है? हेलो, इज द नॉइज स्टिल कमिंग? Okay, are my words clear to you? Okay, can you hear me? All right. So try to ignore that noise. Okay, I have isolated my room. Still the noise is coming. I don't know how. Okay. Let's start. So today the lecture may be for more than 1 hour. Okay, because uh, I'm planning to complete the lesson today. Okay. So I'll off the fan so that you will not get the background noise which you are complaining. Okay. Okay. Again, is the audio clear now? Did anyone remove me? Okay. Okay, I'm starting. All right. So we saw Sir, about sir, 2 properties minutes. of. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Who's sir. this? Yes, yes. Thank you. Who's this ghost gamer Seker? Who's this fellow? Kindly introduce yourself. This name, Ghost Gamer Seker. Who's that? Introduce yourself or you will be permanently removed from class. Changing name doesn't help. We have laid some rules here. You have to put proper name here only. Saket Chaudhary, if you are not interested in class and you don't want to follow the rules, we are not interested in your money. We have put some rules in initial time. You cannot put anything, okay, like this. Change your name and then join. And I will not repeat these instructions. Sir, you can continue, okay? Any nonsensical name now you report to me. We will not allow those students to attend the class, okay? Yeah, sure, sir. Okay. I'm audible to you, sir? Okay, Yes, sir. Thank yes, you. sir. Bye. Yes, sir. Thank you. Bye. Okay. ठीक है. So we studied about properties of air. Okay, we studied that air is a homogeneous mixture of gases, and the gases which air contains, like nitrogen, oxygen, water vapor, and some other gases, right? Uh, Nitrogen and oxygen are the major constituents of air. Already, nitrogen about 77% of the total air, and oxygen is about 22%, and the others are less than 1%. All right. Okay, okay, all right. So आपने किसी ने homogeneous का meaning नहीं पूछा. I define air as is a homogeneous mixture of gases. Do you know what homogeneous means? Homogeneous and heterogeneous. Has this been in your school? No. Okay. So you should ask na. Why didn't you ask me in the previous lecture? All right. So homogeneous means uniform in composition. A mixture which is uniform, which is having uniform chemical constituents is known as a homogeneous mixture. Okay. While a mixture which does not have a uniform chemical composition is an heterogeneous mixture. Okay. So air is a homogeneous mixture. अगर मैं homogeneous mixture का और एक example दूं, so you dissolve sugar in water, right? आप sugar डालते हो तो water में वो dissolve हो जाता है. So that is a homogeneous mixture. While अगर आप पत्थर डालते हो water में, तो क्या पत्थर dissolve होता है? नहीं. So पत्थर and water becomes an heterogeneous mixture. Oil डालते हो आप water में, oil does not dissolve in water, right? So oil and water becomes an heterogeneous mixture. Okay.
is the difference between them. In homogeneous mixture, you don't see separation between two or more chemical constituents. In heterogeneous mixture, you see a separation. Like for example, oil and water. There is a separation in oil and water. Okay. So we saw about humidity. What is humidity? That is the capacity of the air to hold the water vapor. Okay. Humidity is capacity of the air to hold water vapor. So let's talk more about humidity. That is, when the temperature of the air is high, the capacity of the air to hold the moisture also increases. Now, this is a very important sentence over here. Okay, जो ड्यू के फेनोमेनन को, ये हमने ड्यू के बारे में पढ़ा कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन प्लांट्स एंड इन द मॉर्निंग, राइट? तो ये ड्यू के फेनोमेनन को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So whenever the temperature of air is high, the capacity of air to hold the moisture also increases. So I'll give you an example now. All right. So in the afternoon, what happens is the temperature of the air is high because sun is there, right? So the temperature of air is high. So the capacity of air to hold the moisture, that is humidity, increases. Okay. So for example, मैं एक example दे रहा हूँ कि एयर कैन होल्ड 10 kgs ऑफ वाटर वेपर. ओके, असल में ये 10 kgs नहीं होता है. 10 kg इज अ वेरी बिग वैल्यू. वॉइस इज ब्रेकिंग. हेलो, इज माय ऑडियो क्लियर टू एवरीवन? इज इट नाउ क्लियर? हेलो, इज इट नाउ क्लियर? ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं कि वाटर कैन होल्ड 10 kgs ऑफ एयर कैन होल्ड 10 kgs ऑफ वाटर वेपर. ओके, एयर एज द इन आफ्टरनून 12 बजे आपने देखा एयर कैन होल्ड 10 kgs ऑफ वाटर वेपर. ओके, एंड एक्चुअल वाटर वेपर वाज प्रेजेंट इन द एयर एट टाइम, मतलब 12 बजे इट वाज अराउंड 8 किलोग्राम. ठीक है, 8 किलोग्राम है. ठीक है, तो एयर में है 10 kg का उसका कैपेसिटी और उसने 8 किलोग्राम होल्ड करके रखा है. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, एयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं. Now what happens is when the night arrives, the temperature decreases, okay, and as the temperature decreases, the capacity to hold the moisture or water vapor also decreases. ठीक है, तो कैपेसिटी 10 किलो का एयर का 12 बजे दोपहर के, वो रात को 9 या 10 या 11 बजे रात को जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इट बिकेम अराउंड 5 किलोग्राम. ओके, कैपेसिटी आधा हो गया, 5 किलोग्राम हो गया. नाउ एक्चुअल वाटर वेपर कितना था? मैंने बोला था 8 किलोग्राम एक्चुअल वाटर वेपर है उस टाइम 12 बजे. ओके, लेकिन रात को आते आते उसका कैपेसिटी जो है वो कम हो गया. सिर्फ 5 किलो में होल्ड कर सकते हो. एयर बोल रहा है मैं सिर्फ 5 किलो होल्ड करता हूँ. तो जो एक्सेस ऑफ वाटर वेपर है, ठीक है, एक्सेस कितना होगा? 8 किलोग्राम में से 5 हटा दो, कितना? 3 किलोग्राम. जो भी एक्सेस ऑफ वाटर वेपर है उसे एयर को उसे लूज करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव द कैपेसिटी. मेरे पास कैपेसिटी नहीं है उतना होल्ड करने का. ओके, Sir, you are muted.
Sir, you are muted. हेलो, ओके। मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? यस, ठीक, चलो। ओके, देयर वाज अ नेटवर्क प्रॉब्लम सो आई गॉट डिस्कनेक्टेड। ठीक है, वी विल स्टार्ट वेयर वी हैव लेफ्ट। गिव मी अ मिनट टू प्रेजेंट। ऑल राइट, ओके। सो द स्क्रीन इज विजिबल नाउ। ठीक है, is the screen visible? Yes, all right. So I was telling ki how the when the temperature increases, the capacity of the air to hold moisture increases, and when the temperature decreases at night, the capacity to hold the moisture decreases. Okay, so let's come uh, to the scattering of light. All right, so air is a mixture of very fine particles of some gases, dust, smoke, and moisture. So along with gases, nitrogen and oxygen and other inert gases, as well as moisture, there is also dust and smoke due to pollution created by us. ठीक है, so when rays of light falls on these minute particles, बहुत छोटे छोटे particles होते हैं, the particles spread the light in all direction. This natural phenomenon is called scattering of light. So there is a question in your textbook about scattering of light. So क्या होता है कि लाइट के रेज सन से जब आ रहे होते हैं, okay, so it falls on those minute particles and then reflection takes place. Basically these light rays gets reflected a lot, and that phenomenon is known as scattering of light. Okay, we will study this scattering of light in very depth in subsequent lectures. Okay, so temperature regulation. Temperature regulation, let's see what is this. Okay, there are two questions about air. Okay, what would happen if all the air surrounding us is removed? So lot of things. First of all, we would die. ठीक है, देखते हैं कि ये टेम्परेचर रेगुलेशंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ओके, यही इस चीज का आंसर देते। ऑल राइट, एंड विल साउंड बी हर्ड इन स्पेस? ओके, इसके लिए हमें ट्रांसमिशन ऑफ साउंड पढ़ना पड़ेगा। सो ये दो क्वेश्चंस हमें ये पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, सो द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन. This energy is reflected by Earth in the form of heat. The constituents of air surrounding the Earth, such as water vapor, carbon dioxide, absorb a part of this heat and give it to the other constituents of air. Okay, so air consists of water vapor and carbon dioxide in a very minute proportion. But these substances, these constituents, have the ability to absorb heat. Okay, so whatever the heat coming from the light rays of the sun, okay, in the earth's atmosphere, it is absorbed by these constituents. Okay, and the gases which absorbs the heat from the sun, okay, they are called as greenhouse gases. Greenhouse gases, okay, mark this word, greenhouse gases. So the gases which absorb the heat from the sun, they are known as greenhouse gases. Okay, and they absorb the heat and give those heat to other constituents of air. All right, so what does this phenomenon gives rise to? Global warming.
So because of these greenhouse gases, global warming happens. Okay, you must have heard about global warming a lot in your environmental studies. There must be a subject related to that. ठीक है, so global warming is basically necessary for the living world of the earth. Okay, because we require a warm climate to survive. ठीक है, if there will be no global warming, then any living thing cannot survive on earth. ठीक है, दैट इज द रीजन कि बाकी के प्लैनेट्स में, सोलर सिस्टम के बाकी के प्लैनेट्स में लाइफ नहीं है. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर. ओके, देयर आर नो ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, बाकी के प्लैनेट में देयर आर नो ग्रीन हाउस गैसेस. ओके, दिस ग्रीन हाउस गैसेस डज नॉट contribute to global warming, and that is why there is no life on the other planets. Okay, but nowadays what is happening is कि due to industrial pollution we are releasing lot of greenhouse gases. So carbon dioxide and water vapor is one example of greenhouse gases. Basically carbon dioxide is one example of greenhouse gases. There are many other types of greenhouse gases. Okay, so due to industrialization a lot of greenhouse gases are being emitted. Okay, and lot of heat is being absorbed in the earth, and global warming is increasing beyond the range. ओके, सो हमारा प्लैनेट जो है वो हॉटर बनते जा रहा है. ठीक है, दैट्स व्हाई यू हियर द न्यूज ऑफ अबाउट ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजिंग. ठीक है, आइस मेल्ट होना, ये सब न्यूज आप सुनते रहते. ठीक है, सो व्हाट इफ एयर सराउंडिंग अस इज रिमूव्ड, this will happen. Global warming will not take place and we will not be able to live on the earth. Okay, let's see transmission of sound. Transmission of sound. So all the sounds that we hear reach us through the surrounding air. Okay, so sound is an energy, is a form of energy. Okay, which is in the form of wave. Sound is an energy which is in the form of wave. Okay, and this sound energy which is in the form of wave requires a medium to travel. ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा साउंड वेव्स के फॉर्म में आ रहा है. ओके, ये लैपटॉप के एक डिवाइस में जा रहा है. लैपटॉप में माइक्रोफोन अटैच्ड है और माइक्रोफोन से फिर ये इंटरनेट के द्वारा आपके मोबाइल तक पहुंच रहा है और आपके मोबाइल के स्पीकर से आपको आवाज आ रहा है. सो इट रिक्वायर्स अ मीडियम. ठीक है, जैसे कार को रोड लगता है ट्रैवल करने के लिए, ऐसे ही sound also requires a medium, and that medium is nothing but air. Okay, that medium is nothing but air. All right, so will sound be heard in space? So the answer is directly no. Why? Because space does not have air. ठीक है, so as sound requires a medium, we will not be able to hear any sound in space. ठीक है, so the density of air also changes due to change in temperature. डेंसिटी, ये मार्क कर लेना, द डेंसिटी ऑफ एयर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस इन वाटर व्हेन वी स्टडी वाटर. ओके, अभी 5 मिनट में ही पढ़ेंगे. इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस. मतलब एज ए विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस. सो व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस. सो अभी याद रखना कि कोई भी दो प्रॉपर्टीज का अगर मैं रिलेशन बताऊं, ओके, आई एम गिविंग यू रिलेशन. अगर एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है और वो इंक्रीज करने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रही है, सो these two properties are known to be in direct proportional, directly proportional. और अगर एक प्रॉपर्टी में इंक्रीज कर रहा हूं, साइमल्टेनियसली दूसरी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, सो दे आर नोन टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शनल. ओके, inverse proportional. So that is, we will talk more about that. We can hear the whistle of a distant train clearly early in the morning. Why? Because in early morning the temperature decreases, temperature is low, that's why the density of air increases. Density is high. All right, and as the density is high, okay, let's first talk about density, then we will discuss on this. Either you will not be able to understand. Okay, so air is a useful, for now air is a useful medium for transmission of sound. For transmission of sound we require a medium. Okay, and that is air. Okay, अभी ये नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना. So हमने ये क्वेश्चन का भी आंसर किया, ये क्वेश्चन का भी आंसर किया. ठीक है,
Now we will move towards the next natural resources, that is water. Okay, और वाटर में हम लोग डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. So water occurs in liquid state under ordinary conditions. Water is a fluid substance. Water does not have its own shape. Very important. Water does not have its own shape but has a volume. So you can see over here, water का कुछ fixed shape नहीं है. There is no fixed shape of water. बल्कि water को आप किसी भी shape में डालो, वो water उस shape को adapt कर लेता है. Basically वो water उस shape में बन जाता है, right? So water does not have its own shape but has a volume. Okay. It can pass through small holes or seep through very small gaps. So आप अगर यहाँ पे होल बनाओ, मैं अगर होल बनाऊँ तो water will move out of this bottle. Okay, छोटे छोटे होल से भी निकल जाए. So एक कंसेप्ट समझ लेते हैं. यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट लिया, मैंने टैंक लिया, एक टैंक लिया, 3 होल बनाया, एक एकदम टॉप पे, एक यहाँ पे मिडल में, एंड एट दिस वन एट वेरी बॉटम. सो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस मिले क्या कि इसका फ्लो जो है बहुत तेज जा रहा है, मिडल वाले का थोड़ा मॉडरेट, एंड ऊपर वाले का उससे भी छोटा. ऑलराइट, सो व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज दिस टैंक इज fully filled with water. Okay, this is the reference. As I go down, okay, in the height, as I go down, the pressure of the water increases. All right, so आपका sea bed है, there is a sea. As you dive deep into the sea, the pressure of the water increases. So at very depth, ठीक है, सो स्कूबा डाइवर्स वो सब मास्क वगैरह पहन के जाते हैं. वाई? बिकॉज, और ईयर को अच्छे से कवर करते हैं. वाई? बिकॉज द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द डेप्थ इज वेरी हाई. ठीक है, प्रेशर एट द सरफेस लेवल इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, जो 1,01,400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैल्यू जो बढ़ी थी, राइट, जो वो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता है. लेकिन एज यू गो डाउन, the pressure increases beyond the atmospheric pressure. Okay, so and as pressure increases as we go down, at this point, due to high pressure, the flow you can see that covers a long distance as compared to this first point. ठीक है, ये समझ में आया? है समझा? Are you there? No one is commenting. Hello, can you hear me? Water has potential energy at height. Yes, water has a potential energy at height. ठीक है, and this phenomenon is used to create electricity basically, and that is known as hydroelectric power plants. Okay, hydroelectric power plant में ये principle use करते हैं, एक height से water को छोड़ते हैं and we create electricity. ठीक है, okay. सो इसमें नहीं जाएंगे, अभी डेंसिटी समझ लेते हैं. ओके, देयर इज आई विल एक्सप्लेन दिस होल पैराग्राफ. इट इज अबाउट फॉर्मिंग ऑफ आइस एंड एक्सपेंशन एंड ऑल. आई विल एक्सप्लेन इट, बट बिफोर दैट वी गो टू डेंसिटी ऑफ वाटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेंसिटी. सो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, सो अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो मुझे डेंसिटी मिलता है, एंड द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो मास का यूनिट ग्राम होता है या फिर किलोग्राम होता है, राइट? मास का यूनिट ग्राम, ऐसे करते ग्राम और किलोग्राम. आई एम नॉट एबल टू राइट डाउन हियर. सो ग्राम एंड किलोग्राम और किलोग्राम. वॉल्यूम का क्या यूनिट आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा, क्या है? सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब. ठीक है, सो दिस बोथ व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे मेक द यूनिट ऑफ डेंसिटी एज ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब. ऑलराइट, फिजिकली अंडरस्टैंड करते हैं डेंसिटी क्या है. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि
किसका डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा? ओके, हुज डेंसिटी विल बी मोर, सॉलिड और लिक्विड और गैस? कैसे आएगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर? चलो, सॉलिड. ओके, वेरी गुड. आई थिंक सॉलिड. यस, यू आर पार्शियली राइट. सी, तो ऐसा होता है, सॉलिड का डेंसिटी हमेशा ज्यादा होता है. तो आपको तो पता होगा कि डेंसर ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे सिंक करते हैं, राइट? अगर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डाले, अगर उसका डेंसिटी ज्यादा होगा फ्लूइड से तो वो सिंक करेंगे, राइट? वो फ्लोट नहीं करेंगे. जिसका डेंसिटी कम होगा वो वो फ्लोट करेंगे. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर शुड बी कि सर आप कौन से सब्सटेंस की बात कर रहे हो? अगर एक सब्सटेंस है यानी कि वाटर, उसका सॉलिड फॉर्म, ओके, उसका सॉलिड फॉर्म, देन आई कैन से दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. ओके, सो सेम सब्सटेंस का डेंसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं तो यस, आई कैन से दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, पहले सॉलिड आता है, लिक्विड आता है और फिर गैस आता है, ठीक है? लेकिन ये वाटर के साथ ये रिलेशनशिप it does not work. Okay, then that is known as anomalous behavior of water. Okay, so water को छोड़ के mostly generally all substances, okay, all substances उसके solid का density उसके liquid से ज़्यादा होगा और उसका liquid का density उसके gas form से ज़्यादा होगा. Alright, ठीक है? So that is density, mass divided by volume. Okay, now let's see the, एक मिनट. ओके, अभी यहाँ पे आते हैं. So take a plastic bottle more than half full of water, mark the water level on the bottle, keep this bottle upright in the freezer for making ice, open the freezer after a couple of hours and observe. You will see that water has, please repeat sir. Okay, no problem. So अगर मैं एक सब्सटेंस लूँ, राइट? सब्सटेंस फॉर एग्जांपल मैंने लिया, चलो मर्क्यूरी लिया. ओके, मर्क्यूरी लिया. ओके, तो मर्क्यूरी जब सॉलिड फॉर्म में होगा उसका एक डेंसिटी किया मैंने ए बोल दिया. चलो, मर्क्यूरी का डेंसिटी सॉलिड फॉर्म में ए. मर्क्यूरी को हीट किया एंड आई बेसिकली चेंज्ड इट्स फेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. ठीक है, तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा. ओके, वो लिक्विड फॉर्म के मर्क्यूरी का डेंसिटी मैं बोलता हूँ बी. ठीक है, डेंसिटी बी. एंड उसे और हीट करता हूँ मैं और उस लिक्विड फॉर्म को, मर्क्यूरी के लिक्विड फॉर्म को वेपर में सॉरी गैस में कन्वर्ट करता हूँ. गैस में कन्वर्ट होता हूँ तो उस गैस वाले मर्क्यूरी का डेंसिटी मैंने ले लिया सी. ओके, सॉलिड वाला का डेंसिटी ए, लिक्विड वाला का डेंसिटी बी, गैस वाला का सी. सो डेंसिटी कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे? मतलब ए विल बी ग्रेटर देन बी, बी विल बी ग्रेटर देन सी. ठीक है, ओके. सो ये याद रखना है, जनरली density of solid is greater than density of liquid and density of liquid is greater than density of gas for same substance. okay, ये same substance के फेज होने चाहिए, solid, liquid और gas. ठीक है, ओके, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे. ऑलराइट, लेकिन ये रिलेशनशिप वाटर फॉलो नहीं करता. ओके, ये रूल को वाटर फॉलो नहीं करता. That is anomalous behavior of water. We will see in few minutes. All right. Let's now read this. So mark the water level on the bottle. Keep this bottle upright in the freezer for making ice. Open the freezer after a couple of hours and observe. You will see that water has changed into ice. Of course, अगर water को freezer में रखेंगे तो ice में वो convert हो जाएगा. Right? That is cooling. Okay, water को हम लोग cool करते जा रहे हैं and then कूलिंग की वजह से टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से वो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म और वाटर के सॉलिड फॉर्म को हम लोग आइस कहते हैं.
Okay, you will find that ice level is higher than the water level before freezing. मतलब अगर आप एक ग्लास में पानी लेते हो, उस पानी का लेवल मार्क करते हो, फ्रीजर में रखते हो उस ग्लास को, the water will freeze and get converted into ice. तो आइस जो है उसका जो मार्क होगा वो वाटर से ऊपर जाएगा थोड़ा. आइस का मार्किंग देखना, आइस को मार्किंग करना, ओके, वो मार्क से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा. which concludes that water while getting converted into ice has expanded. मतलब क्या, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ओके, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. नाउ लेट्स सी. ओके, सो एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, अभी के लिए लिख लो कि when the water freezes to form ice, it expands and its volume increases. Okay, as the liquid water is getting converted into solid ice, it expands and its volume increases, but the mass remains constant. That is, the mass remains same. Okay, mass में कोई चेंज नहीं आ रहा, only volume increases. Okay, ठीक है. एंड यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने. ओके, एक्सपेरिमेंट किया. सो देयर इज अ वाटर ओवर हियर, ड्रॉप सम ऑब्जेक्ट्स इन दोज वाटर. ओके, सो जो भी ऑब्जेक्ट्स सिंक होंगे, मतलब जो डूब जाएंगे, ऑलराइट, देयर डेंसिटी इज हायर एज कंपेयर्ड टू वाटर. द डेंसिटी इज हायर एज दैट देन कंपेयर्ड टू वाटर. ओके, याद रखना हमेशा, जिसका डेंसिटी उस लिक्विड से ज्यादा होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, जिसका डेंसिटी लिक्विड से कम होगा, वो फ्लोट करेगा वहां पे. ओके, सो सर अभी आप पूछोगे क्वेश्चन कि सर आपने बताया जनरली सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है. चलो मान लिया मैंने, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है, आपने बता दिया, हमने लिख भी लिया. लेकिन मुझे बताओ कि ये आइस जो सॉलिड फॉर्म में है और वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, तो सॉलिड मतलब आइस का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगा. सर आपने ही बताया कि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है लिक्विड से, सो आइस का डेंसिटी ज्यादा होगा वाटर से, राइट. सो इट शुड सिंक, राइट. लेकिन मैं देखता हूं, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं घर पे, तो वो फ्लोट करता है. सर ऐसा क्यों? वाई डज दिस हैपन? ठीक है, सो दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. जो मैं बोल रहा था कि वाटर ये रूल को फॉलो नहीं करता है कि सॉलिड का डेंसिटी ग्रेटर देन लिक्विड. वाटर डज नॉट फॉलो दिस रूल फॉर आइस एंड वाटर. ओके, सॉलिड और लिक्विड के रिलेशनशिप में वाटर ये रूल फॉलो नहीं करता है. वाटर के केस में सॉलिड का डेंसिटी इज लेस देन लिक्विड का डेंसिटी, मतलब आइस का डेंसिटी इज लेस देन लिक्विड्स डेंसिटी. ओके, जहां पे तुमने लिखा है ना सॉलिड का डेंसिटी ग्रेटर देन गैस का डेंसिटी, उसके वहां पे एक अच्छा सा राउंड करके नोट कर लेना कि एक्सेप्शन इज वाटर. ओके, व्हाई? बिकॉज आइस डेंसिटी इज लेस देन द वाटर्स डेंसिटी. ओके, पोटैटो फ्लोट्स ऑन वाटर, आई विल कम टू दैट, व्हाई पोटैटो फ्लोट्स ऑन वाटर. ठीक है, सो ये होता है एनोमलस बिहेवियर. ऑलराइट, नाउ ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विल द मास ऑफ वाटर चेंज व्हेन इट्स स्टेट चेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू आइस? मैंने बता दिया है कि नो, straight away no, mass remains constant, but salt is needed in the water. Okay, I will come to that, don't comment on that. Okay, flow आप तोड़ रहे हो, ठीक है. सो हमने अब तक देखा नहीं है, हमें सिर्फ पता चला है कि वाटर ये रूल को फॉलो नहीं करता है, राइट. अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, देखेंगे कि क्या बोल रहे, ठीक है.
देखेंगे कि क्या बोल रहे हैं. ओके, सो यूजुअली when the temperature of substance is lowered, its density increases as the volume decreases. Okay, तो एज द, अभी ये भी एक रिलेशनशिप आ गया. ओके, बहुत सारे रिलेशनशिप है. मैंने बताया कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. लाइक टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी के फॉर्मूला में ही मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है. इसे समझते हैं. When the temperature of the substance is lowered, its density increases as the volume decreases. So अभी एक golden point note कर लेना. Golden point. Whenever the temperature of substance increases, the volume increase. Okay, हमने यहाँ पे भी देखा है. क्या water, sorry, इस पे नहीं जाऊंगा अभी. Whenever लिख लेना, whenever the temperature of the substance is increased, whenever the temperature of the substance is increased, the volume increases. Okay, the volume of the substance increases and its density decreases. Okay, लिख लेना. Okay, whenever the temperature of the substance increases, its volume increases and its density decreases. पहला point. Second point, when the temperature of the substance is lowered, मतलब when the temperature of the substance decreases, okay, its volume decreases and its density increases. Okay, so anytime it is happened, volume travel fast and light after volume travel fast, volume can't travel, volume is a property. Okay, ठीक है, इसे समझते हैं क्या होता है. सो यहाँ पे मैंने एक सब्सटेंस लिया जिसका मास है, देख पा रहे हो ना, इसका मास है 10 ग्राम. ओके, 10 ग्राम. ओके, उसका वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, 5 सेंटीमीटर क्यूब. सर व्हाट टू राइट, कैन यू रिपीट? ओके, मैं रिपीट करूंगा, ये कंसेप्ट समझ लो, आप अपने आप भी लिख पाओगे. मास है 10 ग्राम, वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है? 2. और ये डेंसिटी का यूनिट लिख लिया, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये जो आप सीसी देख रहे हो ना, आप बोलोगे सर अभी आपने क्या, ये यहाँ पे सीसी लिखा है, वहां पे सेंटीमीटर क्यूब, एक ही चीज है. ठीक है, एक ही चीज है. दे आर वन एंड द सेम. सो 10 डिवाइडेड बाय 5, 2. ओके, नाउ व्हाट आई डू इज आई हीट दैट सब्सटेंस. ओके, मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ. व्हाट आई ऑब्जर्व इज mass remains constant, that is 10 gram, mass remains constant, but the volume increases. Volume increases मतलब वो expand होता है. Whenever I heat the substance, its temperature increases, and as the temperature increases, volume increases. Okay, देखते, volume increase हुआ, mass constant रहेगा, mass remains constant. So 10 divided by 10 is equal to 1 gram per centimeter. आप देख पा रहे हो, 2/3 डेंसिटी. मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या हुआ? डेंसिटी कम हो गया. ओके, डेंसिटी कम हो गया, 1 इज लेस देन 2, डेंसिटी हैज डिक्रीज. सो गोल्डन पॉइंट लिख लेना, ऐसा बना लेना आपके नोटबुक में. व्हेनेवर द टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस. 5 से 10 हो गया, वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. ओके, एंड डेंसिटी डिक्रीजेस. और इसका उल्टा कर लेना, जब भी मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है. टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज. ओके, अभी वापस आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर लेकिन आइस और वाटर के मामले में ऐसा नहीं होता है. आइस और वाटर के मामले में ऐसा नहीं होता है. हम लोग वाटर को कूल कर रहे हैं फ्रीजर में रख के, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, but the volume of ice is increasing. Going to come, yes. So the volume of the water is increasing while converting into ice. Why does this happen? Again, anomalous behavior of water.
अगेन एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये लेक्चर को, रिकॉर्डेड लेक्चर को यूट्यूब में जाके वापस देख लेना, वापस मेरे शब्दों को वापस सुन लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ओके, और 2-3 बार ये लेक्चर को देखना, ठीक है। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अभी शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ये पैराग्राफ जब मैं रीड करूंगा। ऑलराइट, यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोअर्ड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस। हमने देख लिया, ये देख लिया। बट वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। Okay, water is an exception to this rule. Keep a glass full of water in the freezer. मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ. Keep a glass full of water in the freezer for 5 to 10 minutes, then take it out and observe it carefully. From which part in the glass does the water first start freezing? So obviously, water starts freezing from the surface only. Water starts freezing from the surface. Okay. चलो, आपको सीटी की आवाज आ रही होगी, इग्नोर करो वो, ओके। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब है, अजीब तरीके से बिहेव करती है। जैसे मैंने रूल बताया वैसे नहीं बिहेव करती, वो रूल को फॉलो नहीं करती। वाटर एनोमलस बिहेवियर, बहुत अजीब तरह से बिहेव करता है। व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज अराउंड, ओके, normal temperature is around 37 degrees Celsius, 35 to 37 degrees Celsius normal temperature बोलते हैं, okay। starts cooling मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होना। its density increases like that of most liquids, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, बाकी सब्सटेंस की तरह भी नॉर्मल टेम्परेचर पे एट 37 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिक्रीज करो, 35, 34, 30, 25, 20, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। बाकी सब्सटेंस की तरह ये भी, इसका भी डेंसिटी, ओके, इसका भी डेंसिटी इंक्रीज होने लगता है, ओके, इसका भी डेंसिटी इंक्रीज होने लगता है। नॉर्मली बिहेव कर रहा है, ओके, अब तक अजीब बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर उसने स्टार्ट नहीं किया, नॉर्मली बिहेव कर रहा है। However, if its temperature falls below 4 degrees Celsius, however, if its temperature falls below 4 degrees Celsius, its density starts decreasing. मतलब 37 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आने तक ये नॉर्मली बिहेव कर रहा था, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीजिंग, डेंसिटी इंक्रीजिंग। 4 डिग्री सेल्सियस के आने के बाद अगर आप और कूल करो, ओके, यू डिक्रीज द टेम्परेचर, इट्स डेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ओके, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। दिस मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये ग्राफ में अगर बनाऊं, ओके, ये डेंसिटी है, ओके, ये टाइम है, ओके। डेंसिटी क्या, जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ 37 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 37 से 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी डेंसिटी हो रही है इंक्रीज 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 इंक्रीज, ये आ गया 4 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस हैज कम। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, अरे यार, ओके, सॉरी फॉर दैट नॉइस। From this point onwards, the density starts decreasing. So ये जो हो गया, आपने ग्राफ पढ़ा रहेगा, राइट? ये जो हो गया, at 4 degree Celsius, the density is maximum. All right. So this is, its density decreases and volume increases. Okay, if the temperature of water is lowered below 4 degree Celsius, its density decreases and volume increases. It means that water expands when the temperature falls below 4 degree Celsius. Okay, it means that water expands when the temperature falls below 4 degrees Celsius. Okay, this is called anomalous behavior of water. All right, इस concept को वापस देख लेना recorded lectures में, right? Now let's come to the potato problem.
आप बोल रहे थे पोटैटो वो फ्लोट क्यों कर। ओके सो एक एक्सपेरिमेंट किया, there is a water, okay, there is a water in a cup, you dip the potato in it, it will sink, I guarantee you वो sink होगा अगर प्योर वाटर में डाल रहे हो। नाउ व्हाट यू डू, उस वाटर में सॉल्ट को डालो, ओके यू ऐड सॉल्ट इन इट एंड देन ऑब्जर्व, सॉल्ट डालो देन ऑब्जर्व, द पोटैटो will start floating, the potato will start floating। इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि whenever you put salt in the water, the density of water increases। लिख लेना, whenever you put salt in water, the density of water increases। कुछ एग्जामिनर्स क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि why is it easier to swim in the sea than in a well or a lake, so you can answer them कि the density of water in sea is greater than density of water in lake or well, first point। second point बताना कि why the density is greater in sea, because the sea consists of salt, all right, that's why the density of water in sea is greater than density of lake। So as the density increases, this helps in floating and swimming easily, okay, this helps in swimming, okay, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। सो ये एक्सपेरिमेंट से हमें 3 टर्म्स को पढ़ना पड़ता है, और sea has no salt, we can easily float on it, yes very good sir, even we float at water if we lose our body, okay। so 3 टर्म्स पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये, देखते हैं क्या है। When the salt dissolves in water, its particles spread in water. Slowly they become smaller and smaller and smaller and smaller. Ultimately they become so small that they cannot be seen. Okay, हम हमारे naked eye से हम लोग देख नहीं पाते। That is, they mix completely with water, and this is what we call dissolving. Okay, whenever the salt mix completely with the water and disappears, that is what we call dissolving। ओके वो सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है, ओके। अभी देखते हैं टर्म्स। सोल्यूट, द सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स, ओके, जो भी सब्सटेंस उस लिक्विड में डाल के डिसॉल्व हुआ है तो वो डिसॉल्व सब्सटेंस को सोल्यूट कहेंगे। इस वाले एक्सपेरिमेंट में सोल्यूट क्या हुआ, सॉल्ट, ओके। डेड सी हैज द मोस्ट सॉल्ट, यस डेड सी हैज द मोस्ट सॉल्ट, यस यू आर राइट। So in this experiment, abhi no comments, listen carefully, in this experiment salt is the solute, salt is known as solute here। अगर आप शुगर को पानी में डिसॉल्व करो, if you dissolve sugar in water, so what is the solute there, comment करोगे आप, what is the solute there if you dissolve sugar in water, what is the solute there, I am waiting for your comments। sugar, yes very good, sugar। Solvent, so solvent is the substance in which the solute dissolves। जो भी लिक्विड में या सब्सटेंस में जो भी सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, ओके। सो शुगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, सो व्हाट इज द सॉल्वेंट, वाटर। सॉल्यूशन इज व्हाट वी गेट व्हेन द सोल्यूट डिसॉल्व्स इन द सॉल्वेंट। सो मैंने शुगर को डिसॉल्व कर लिया है वाटर में अच्छे से, सो अभी जो हमारे पास है sugar plus water, it's not only water, it is not only sugar, it is both, it is a combination of both, it is just that the sugar has dissolved in water and you cannot see sugar, but it is present in water, and the combination of both we call it as solution is what we get when the solute dissolves in the solvent, all right। this was the 3 terms, okay। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज सोल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर मैं शुगर को डिसॉल्व करूँ वाटर में तो सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वाटर प्लस
शुगर। ओके, ये आपको बताना आना चाहिए। ऑलराइट, ये कुछ यूजेस ऑफ वाटर है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, आपको पता ही रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम, सर इन एग्जाम इट इज कम, यस यस, very important. So let's come to the our third natural resource, that is properties of soil. Soil. Okay, just give me a minute. पानी पीने दो। Sir, if we mix the salt, we get little bit white color, and if we mix sugar, it is transparent. No, see, हर एक सॉल्वेंट का एक लिमिटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करो तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन आप सॉल्ट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, सो वो आप जो बोल रहे हो ना व्हाइट कलर आता है, वो व्हाइट कलर दिखने लगेगा। सिमिलरली शुगर के साथ भी है, शुगर का भी एक लिमिटिंग पॉइंट है। सो हर एक सोल्यूट का एक लिमिटिंग पॉइंट है डिजोल्व होने का। शुगर आप डालते जाओ, डिसअपियर होती जाएगी, डालते जाओ, एक्सपेरिमेंट करके कर लेना घर पे, अगर शुगर ज्यादा हो घर पे तो डालते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी शुगर डिजोल्व नहीं होगी। राइट, दैट इज अ लिमिटिंग पॉइंट। ओके, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट सॉइल। सो सॉइल का definition: soil is a mixture of, so did you drank water? Yes, I drank water. So soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, liquids and organism. Soil is a mixture of organic matter, minerals, gases, liquids and organism. सॉइल में ये सब होता है। ऑर्गेनिक मैटर, व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर? जो कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन एटम आपने पढ़ा होगा, कार्बन एटम, आई थिंक द एटॉमिक नंबर इज 6, राइट? कमेंट में बता देना मैं गलत हूँ या राइट। 6 कितना होता है? सो carbon related compounds are known as organic matter, and there is a separate subject in 11th standard, organic chemistry. Okay, so what did you ask? Carbon's atomic number 6. Yes, so carbon related compounds are known as organic matter. ठीक है, जो भी डेड बॉडी है एनिमल्स की, प्लांट्स की, when they die, okay, they get the matter of that dead body gets mixed with soil, and that matter is known as organic matter. ठीक है, मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑल अदर मिनरल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेंसिटी इन वाटर, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेंसिटी नहीं, डेंसिटी चेंजेस, बट या आगे जाके आप पढ़ोगे कि क्या मैक्सिमम लिमिट होगा। सेम विद शुगर सॉल्यूशन। यस, सो अभी नो कमेंट्स, फोकस ऑन सॉइल। ओके, so the color of the soil near land surface is darker than the color of lower layers. Okay, soil may be of different colors such as black, red, copper, yellow, gray. अलग अलग कलर्स में आता है सॉइल, एंड दिस becomes the basis of classification. So we classify soil according to the colors. ठीक है, कलर्स से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सॉइल है। So besides soil, colors of soil are useful for its classification. Besides, they are indirectly useful in indicating several properties of the land. In this way, the properties of soil such as fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color. So color के according we identify what type of soil is this. ठीक है, we will see 3 types of soil. Okay, and we are able to identify its properties such as fertility. So fertility is the ability of the soil to support growth. Fertility is the ability of the soil to support growth. Okay, drainage of water matlab it is again the ability of the soil so that the water can easily penetrate into ground, or water can easily penetrate into soil, matlab
कि रेनी सीजन में पानी आता है क्लाउड से और सॉइल के ऊपर गिरता है, राइट? सो लाइक एसिडिक सॉइल, ओके वेट अ मिनट, पानी ग्राउंड पे रहता है, राइट? सॉइल पे रहता है। सो सॉइल का एबिलिटी कि उस जो सरफेस पे पानी है उसे नीचे जाने देना है या नहीं, उस एबिलिटी को कहते हैं ड्रेनेज ऑफ वाटर। सो सॉइल शुड बी एबल टू अलाउ दैट वाटर टू सीप इनटू डेप्थ, ओके, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे जो रूट्स रहते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं, ना कि सरफेस पे रहते हैं। मॉडिफाइड रूट्स अलग बात है, लेकिन जो प्राइमरी रूट्स है हमारे वो सॉइल के अंदर रहते हैं। तो पानी कहाँ होना चाहिए? सॉइल के अंदर, ठीक है? दैट्स व्हाई ड्रेनेज ऑफ वाटर वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, ठीक है, कितना पानी होल्ड कर सकता है, ठीक है? सो द कलर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन इट्स टेक्सचर। सो टेक्सचर इज बेसिकली अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉइल, कैसा दिख रहा है सॉइल, ओके? टेक्सचर इज अपीयरेंस, ऑलराइट? And its organic ingredients as well as chemical ingredients like iron, lime, ये सब ingredients होते हैं soil में, okay? Now we will not see this experiment right now, it's not important. The soil texture and it's a region. Yes, again soil is in different region we get different types of soil, so that is a part of geography. Okay, sir. Kokan soil, the laterite soil is well drained. Yes, very good. Now let's come to our topic, that is soil texture. Okay, हम लोग देखेंगे आज कितना हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है? कुछ 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 9-10 या 9-15 तक, ठीक है? आई डोंट नो इफ द गूगल मीट अलाउज दैट मच टाइम लिमिट, बट लेट्स सी, अगर बीच में क्लास बंद हो जाता है तो होने दो, ठीक है? हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट? So soil texture. Soil contains particles of different sizes. ठीक है? The texture of soil is determined by the proportion of particles of various sizes in it. So soil के में जो भी particles है बहुत वेरी करते हैं soil के, और according to that also we have classified the soil. ठीक है? Following are the types of soil on basis of its texture. So I said texture is the appearance. In Rajasthan it is sandy soil. Okay. So texture is the appearance of the soil. So according to its appearance or according to its texture, soil is classified into 3 types. It is sandy soil. Okay, first one sandy soil. Let's read that what it is. ये इसका image है sandy soil का. The proportion of sand, that is large particles, is high in sandy soils. So जो इस सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे. सो इसका एग्जांपल, अगर आप बीच में जाओ तो बीच पे सैंडी सॉइल मिलता है, ठीक है? यस, बीच आल्सो हैज सैंडी सॉइल, वेरी गुड. सो वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू सैंडी सॉइल, मतलब वाटर बहुत इजीली पेनिट्रेट होता है, ठीक है? बहुत इजीली पेनिट्रेट होता है इसमें. व्हाई? बिकॉज देयर आर लार्ज पार्टिकल्स, सो कॉम्पैक्ट नहीं होता है, मतलब एकदम जुड़ा हुआ नहीं रहता है, सॉइल बहुत लूज रहता है. Meet allows 5 hours limit. Okay, all right. So we will complete this lesson now. Okay, 9:15 तक पढ़ेंगे, फिर I will close. All right. Water drains rapidly through sandy soil. It is easy to plow this soil. Now plowing, आपने ये farmers plow करते हैं. Okay, आपने phenomenon सुना रहेगा geography में, plowing. So plowing basically is the process of loosening of soil. Okay, farmers और सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है? और फिर बाद में जो सीड्स है वो डालते हैं, ठीक है? दैट इज ओके. दिस इज रिक्वायर्ड टू सो दैट द सॉइल इज परफेक्ट, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ठीक है? सो इट इज इजी टू प्लो दिस सॉइल. जो इसका लूजनिंग है, सॉइल बहुत लूज होता है एज आई सेड. सो इसका जो लूजनिंग है, अगर आप खोदना चाहो, बीच में बड़ा गड्ढा बना सकते हो, ठीक है? बीच पे जाओ एंड यू विल बी एबल टू dig the soil very easily, ठीक है? So plowing is digging of the soil, but it is less fertile. ये important है, it is less fertile. Fertile मतलब क्या है? Ability of the soil to support growth. मतलब ये कोई भी plants के growth को support नहीं करता है. It does not support the growth of any plant, ठीक है? That's why you will not see any plants in sandy soil, ठीक है?
This is because the particles of, but it is less fertile. Why? Why it is less fertile? Because the particles of sandy soils are made up of the mineral called silicon dioxide. Its common name is quartz. और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हम लोग ग्लास बनाते हैं. विंडोज के ग्लास जो देखे रहेंगे, वी मेक ग्लास आउट ऑफ दिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो सैंड से हम लोग ग्लास बनाते हैं, याद रखो. ठीक है. दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर है, एंड देयरफॉर द सॉइल हैज वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. So if I dissolve soil into water, it becomes a heterogeneous mixture. Why? Because it does not dissolve in water, and there we can see a separation between soil and water. ठीक है. Silicon dioxide, quartz. Yes. ठीक है. Let's move to the silt soil. Now this is a very fertile soil और यहाँ पे हमें plantation, यानी कि यहाँ पे हम लोग growth करते हैं plants का. ठीक है. It is very suitable for the growth of plants. All right. The particles of silt soil are of medium size. तो sandy soil में कैसे particles है large, बड़े बड़े. Large particles को coarse भी कहा जाता है, COARSE, coarse. कोर्स पार्टिकल्स. सो कोर्स पार्टिकल्स अगर आपने पढ़ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, इट मींस लार्ज पार्टिकल्स. पार्टिकल्स ऑफ silt soil are of medium size. Silt soil is not as plowable as sandy soil. मतलब ये जो रहता है उसे डिग करने में आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा. ओके, दैट इज व्हाई द फार्मर्स यूज सिल्ट सॉइल पे ही मोस्टली फार्मिंग होती है, एंड दैट इज व्हाई फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स एंड ऑल. ठीक है. हाथ से करना बहुत मुश्किल है, सो ट्रैक्टर्स एंड बुल्स आर यूज्ड टू प्लो दिस सॉइल. ओके. However, it is much more plowable than clayey soil. So basically comparison किया है, सैंडी सॉइल से इजी है प्लो करना, डिग करना, बट क्लेई सॉइल से इट इज लिटिल डिफिकल्ट. ओके, वी विल सी व्हाई. This soil contains a large proportion of organic materials which is needed for the plant's growth. Okay, its capacity to supply nutrients is much greater. Again, it is needed for the plant growth. Silt soil is also called as sedimentary soil. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा sedimentary soil. So silt soil, sedimentary soil, one and the same. ठीक है. Okay. So next, let's say then how sugar can grow in sandy soil if it does not supply nutrients. Sugar can does not grow in sandy soil. I don't know. पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा. Maybe I will come up with the answer in next lecture. लेकिन मुझे अब तक जितना पता है कि sugar can does not grow in sandy soil. Okay. So clay soil. Yes, in geography soil chapter. ठीक. अच्छा, माइक मत ऑन करो. ओके. ठीक है. सो मे बी कुछ प्लांट्स होंगे जो ग्रो करते रहेंगे सैंडी सॉइल में, बट अगेन इट इज लेस फर्टाइल, सो फार्मिंग तो नहीं होती है सैंडी सॉइल में जितना मुझे पता है. ठीक है. लेट्स मूव टूवर्ड्स क्ले सॉइल. क्ले सॉइल. ओके. सो इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. सो देख लेना, डिफरेंस पूछे तो आप देख लेना कि सैंडी सॉइल लार्ज पार्टिकल्स, silt soil medium size particles, clay soil small particles. Small particles are also said as fine particles, FINE, fine. Fine particles मतलब small particles. ठीक है. डिफरेंस देख लेना, लार्ज, मीडियम, स्मॉल. ओके. पार्ट और ये स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से ये जो है वो कॉम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, दे आर कॉम्पैक्ट. ठीक है. एंड ठीक है, दैट इज वाई क्ले सॉइल इज वेरी हार्ड टू प्लो. जो डिग करने में क्ले सॉइल बहुत डिफिकल्ट होता है. वाई? बिकॉज दे कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स. ओके, एंड दे आर कॉम्पैक्ट. ओके, कॉम्पैक्ट मतलब टाइटली एकदम अपने आप अपने पार्टिकल से जुड़े हुए होते हैं. ऑलराइट. द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच. क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच. क्ले सॉइल हैज अ high water holding capacity. Clay soil has a high water holding capacity. So comment में मुझे बताओ कि have you studied clay soil in geography? Okay, कौन से region में है बताओ मुझे comment में अगर आपने पढ़ा हो तो. So clay soil is also used to make Ganpati. Oh yes, yes, they are used to make Ganpati. Okay. तो किसी को पता हो तो
Daldal. Okay, yes, very good. Daldal. All right. So this was the classification of soil according to the texture, like how they look. Okay. सॉइल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी एक क्लासिफिकेशन है. स्ट्रक्चर मतलब कैसे उनके पार्टिकल्स है, बेसिकली कैसे उनके पार्टिकल्स है, कैसे उनके पार्टिकल्स दिखते हैं. ओके. सो द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट शेप्स ऑफ द पार्टिकल. कैसे दिखते हैं, it depends on shape of the particle. That is what is shape of the particle. So where we find clay soil. Yeah, that's why what I am asking कि कहाँ पे मिलते हैं clay soil. See, I also don't know. That's why I was asking. लेकिन अगर किसी को यहाँ पे पता नहीं, so I will search. Okay, and I will come up with the answer. मुझे next lecture में जरूर पूछना, ठीक है? कि sir where we find clay soil. Alright? मुझे region नहीं पता, ठीक है? मेरा geography थोड़ा कमजोर है. So according to the shape of the particle, soil is again classified. Let's see. Soil occurs in the form of columnar, laminar, granular, as well as block shaped. So columnar is this one. Okay, columnar shape looks something like this, like columns. ठीक है, columns होते हैं building में, temple में. आपने columns देखे रहेंगे. You must have seen those columns. So columnar is like this. Easy to remember. Laminar is like this, plates. Laminar is a type of fluid flow. Okay, अभी जानने की जरूरत नहीं आपको. So laminar is like this कि एक एक प्लेट रहते हैं, ऊपर ऊपर एक के ऊपर अरेंज किए रहते हैं. ऑलराइट. ग्रॅन्युलर इज लाईक पार्टिकल्स. मतलब बिस्किटचा चुरा माहिती असेल, तुम्ही बिस्किट खाता तेव्हा चुरा निघतो, तेव्हा ते चुरा जसा दिसतो तसा ग्रॅन्युलर सॉइलचे पार्टिकल्स दिसतात. ऑलराइट. अँड देन देयर आर ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर like this, block shaped structure. Okay. So uses of soil. Let's see what are the uses. So plant conservation. It is soil क्या करता है plants के growth में help. Water conservation. Soil holds water as a result by means of bunds and lakes. Bunds मतलब canals होते हैं, basically canals. You must have studied this in geography. And lakes, we can get water for use throughout the year. Plasticity. Soil can be given any required shape. So again, as water, soil can be given any required shape. This property of soil is called plasticity. Okay. This property of the soil to give the required shape is known as plasticity. So because of its plasticity, we can use it to make articles of variety of shapes. So आप तुम्ही कुंभार बघितला असेल, कुंभार जो pots बनवतो, ऑलराइट, जो पॉट बनाता है ऐसे. ओके, किसी के घर में भी होगा, ठीक है. सो दे आर मेड अप ऑफ दिस सॉइल. ऑलराइट. सो दीज आर्टिकल्स कैन बी बेक्ड. बेक्ड मतलब हीट करना. ओके, ये सॉइल को हीट किया जाता है टू मेक देम हार्ड. वॉटर स्टोरेज, अर्दन पॉट्स. ठीक है, मटका, आपल्या घरचा मटका. अर्दन लॅम्प्स, आयडल्स. आयडल्स म्हणजे शाडूच्या मातीचा आपण गणपती बनवतो, राईट. ब्रिक्स. these are the fundamental of constructions, right. बिल्डिंग ह्यानीच बनले असते, एक्सेट्रा आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल. ओके, ये कुछ थिंग्स है जो हम लोग सॉइल से बनाते हैं. तो सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट इज चाइना क्ले. इट इज ऑल्सो नोन एज काउलिन. ठीक है, इट इज व्हाइट इन कलर. इट इज यूज टू मेक क्रॉकरी. क्रॉकरी मतलब डिश. ओके, दिस इज क्रॉकरी. डिश, स्पून, कप्स, ये सब क्रॉकरी में आ गया. ओके. बाथरूम टाइल्स, टैंक्स. अर्दन लैम्प्स मीन्स, ओके, can't recall actually earthen lamps. ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे earthen lamps. आई विल टेल यू. ओके, मैं गूगल करूंगा. अगेन नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये भी पूछ लेना, व्हाट इज earthen lamps. ठीक है सर, आई मेंशन्ड अबाउट. क्या मेंशन किया आप वापस कमेंट कर सकते हो. सो
आई वॉज टॉकिंग अबाउट चाइना क्ले. सो बेसिकली आपके जो ये चाय जो पीते हो आप, तो चाय के जो डिशेस एंड कप्स है वो चाइना क्ले से बने रहते हैं. शाडू सॉइल, इट इज व्हाइटिश इन कलर. अगेन इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टॅच्यूज एंड आयडल्स. ठीक आहे, स्टॅच्यूज अँड आयडल. गणपतीची जी मूर्ती आहे मातीने बनली असते. टेराकोटा सॉइल, दिस सॉइल इज रेड इन कलर. टेराकोटा. Decorative articles and pots used for growing plants are made from this soil. So this is all information. There is no like logic and concept behind this. So this is like information, you need to know this. Okay. So multani soil, this soil is used in cosmetics. So skin को अच्छे करने के लिए कुछ लोग मुल्तानी माटी. Sir, earthen lamp is known as diya. Oh, all right, all right. Okay, so a student has answered this. Very good, thank you. समझ में आया ना अर्दन लैम्प? ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड. सो मुल्तानी सॉइल, ठीक है, कुछ लोग लगाते हैं स्किन को अच्छा करने के लिए, स्मूथ करने के लिए वी यूज मुल्तानी सॉइल. ऑलराइट, दिस वर सम यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए नहीं, हम लोग बाकी यूज के लिए भी करते. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू सॉइल टेस्टिंग. ओके. The proportion of various, we found clay near the surface of earth, we need to mine near lava. Okay, all right. The proportion of the various ingredients of soil can be determined by soil testing. So जो जो ingredients है उसके proportions, ingredients यानी कि organic matter, iron, maybe silicon dioxide and all, जो भी ingredients है, जो भी fertilizers है, जो भी है ingredients, कितने proportion में है. ओके, एक पर्टिकुलर प्लांट को एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जरूरी होता है फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक प्लांट वन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ. सो दोस स्पेसिफिक प्लांट्स ग्रो इन दैट सॉइल ओनली. ठीक है. सो ये सब हम लोग सॉइल टेस्टिंग से निकालते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर कलर, टेक्सचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ organic matter in it. Soil is tested to find out if there is deficiency of any ingredients and to decide what measures should be taken to remove the deficiency. ठीक है. तो कोई भी ingredient की deficiency हुई तो what we do, we add chemical fertilizers. Okay, so that the ingredient which was less has been compensated by those chemical fertilizers. So वो ingredient हम लोग खुद डालते. Okay. The soil sample collected for testing is dried in an open space in the shade. Shade मतलब एक अक्सर workshop जैसा, house जैसा. Okay, for 8 to 10 days. Okay, it is then sifted through a sieve. मतलब छलनी करना. ठीक आहे. तुम्ही आईला बघितलं असेल नेहमी की ते तांदूळ वगैरे घेते तेव्हा ती छळणी करते, राईट. म्हणजे whatever the small particles are there, those get removed by this sieve. Okay, by this sieve, right, and the coarse particle मतलब large particles remain in that sieve. ठीक है. तो separation करने के लिए we use this process, sifted through a sieve. Okay. Two tests, namely pH and electrical conductivity tests, are particularly useful in finding out characteristics of soil. So what's pH? ओके, पीएच के बारे में आप केमिस्ट्री में आगे के लेसन्स में और अच्छे से जानेंगे. ठीक है. बेसिकली पीएच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ठीक है. पीएच के अकॉर्डिंग अगेन हमने सॉइल को या किसी भी सब्सटेंस को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज एसिडिक, न्यूट्रल, सेकेंड एंड थर्ड इज अल्कलाइन. ओके. तो न्यूट्रल सॉइल इज बिटवीन, एक स्केल रहती है एक्चुअली, पीएच स्केल रहती है. ठीक है. इट इज अबाउट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट एंड्स टू 14 एंड देयर इज अ मिडल पॉइंट 7. सो ये जो पार्ट होता है वो एसिडिक होता है. ओके, एसिडिक, ये पार्ट एसिडिक होता है और ये जो पार्ट होता है वो अल्कलाइन होता है या फिर बेसिक भी बोलते हैं. ओके, अल्कलाइन. ओके, अल्कलाइन. सो सॉइल के केस में देखते क्या है कि when pH is between 6.5 to 7.5, मतलब
कुछ इसके बीच में 6.5 to 7.5 इसके बीच में जब होता है, so that soil is known as neutral soil. What is the full form of pH? What is the full form of pH? No idea यार. pH का full form अभी तो नहीं पता. ठीक है. So I'm noting down all your doubts. Next lecture I will clear that. ठीक है. What is full form of pH? Neutral soil is between 6.5 to 7.5. Acidic soil is less than 7.5. तो मैंने बस जैसे बताया कि यहाँ ये पार्ट में, ये स्केल के पार्ट में एसिडिक आता है. ठीक है. सो लेस देन 6.5 मतलब ये ऊपर. ठीक है. 0 to 6.5 के बीच में जो भी अगर वैल्यू हुई तो दैट इज नोन एज एसिडिक सॉइल. एंड pH which is greater than 7.5 is known as alkaline soil. So what we require, like what plants require to survive is neutral soil. So plants के सर्वाइवल के लिए न्यूट्रल सॉइल लगता है. ओके. सो एक एग्जांपल की व्हेनेवर फर्स्ट टाइम रेनिंग जो होती है तो हम उसे एसिडिक रेन भी कहते हैं. ठीक है. सो एसिडिक रेन से क्या होता है कि सॉइल की जो pH वैल्यू है वो कम हो जाती है. ओके. एंड द सॉइल बिकम्स एसिडिक सॉइल, सो विच इज नॉट प्रिफर्ड. ठीक है. वी नीड न्यूट्रल सॉइल फॉर अ सर्वाइवल. बाय बाय सर. ठीक है. चलो. ओके. वी विल एंड देयर. For alkaline also other types of beans are there. Yes. Any doubts? Chalo, we will end there. It's 9:15, almost 9:15. No, ठीक है. चलो. Okay, everyone, bye. Take care. Okay, कुछ अगर बचा होगा तो मैं next lecture में ले लूँगा. And we will start new lecture on Friday. Okay, Friday से भी lecture रहेंगे. Now everyone leave the class right now. एक एक करके सब लोग क्लास को लीव करो जल्दी से. चलो. बाय बाय बाय. एवरीवन लीव. ओके.